Merits and demerits of in situ and ex situ conservation of genetic resources. Dear students, in previous lesson you have learned about genetic resources and different types of genetic resources. We have discussed about plant genetic resources for food and agriculture, and how we can conserve these plant genetic resources. We have discussed about different techniques of genetic resources, and we have discussed about in situ and ex situ conservation of this conservation. In situ, and we have discussed about in situ and ex situ techniques of conservation. Now in this module you will learn about some merits of in situ conservation and demerits of in situ conservation, merits of ex situ conservation and demerits of ex situ conservation. So let's start with in situ conservation and its merit. Dear student, as we have discussed in previous module, that in situ conservation, in this type of conservation, we conserve genetic resources inside their habitat, as its name indicate that it is in situ. So in this type of conservation, we should conserve all genetic resources inside their habitats. And we have discussed different types of in situ conservation, and here we will discuss merits and demerits of this type of conservation. So first merit is plant and animal conserve in their natural environment, यानी कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें कंजर्व कर रहे हैं. तो इस तरह से उन एनिमल और प्लांट को किसी और इन्वायरमेंट में जाके खुद को अडॉप्ट करना नहीं पड़ता, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व होते हैं, उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. सेकेंडली, बायोडाइवर्सिटी परमानेंटली प्रोटेक्टेड. इस तरह से जो वहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी है, हम उसको परमानेंट बेसिस पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हम सिर्फ उन एनिमल्स का हैबिटेट चेंज नहीं कर रहे, उन्हें किसी और इन्वायरमेंट में जाके प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उस तमाम बायोडाइवर्सिटी को उनके अपने एरिया में, उनके अपने हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं. तो इस तरह से अब वो जो कंजर्वेशन है वो परमानेंट बेस पर है. नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड परमानेंटली. इस तरह से वो जितने भी एरियाज़ हैं उनका जो एक कल्चरल वैल्यू है, कल्चरल हेरिटेज है या नेचुरल, हमने उसको भी परमानेंट बेस पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड. Opportunities may arise for ecologically sustained land uses which come with associated economic benefits. Facilitate scientific research of the site. यानी कि हम उस साइट पर जाकर अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं उन एनिमल्स पर, उन प्लांट्स पर, तो हम उनके नेचुरल हैबिटेट में जाकर स्टडी कर सकते हैं. तो इसके साथ ही ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं कि हम किस तरह से उन लैंड का या उन एरियाज़ का एक सस्टेनेबल, एक वाइज यूज़ कर सकें और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकें. सो ऑल दीज आर डिफरेंट बेनिफिट्स एंड डिफरेंट मेरिट्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. But like all different techniques, like all different applications which have different benefits, no doubt, but all those techniques have some demerits or some limitation also. So this type of conservation have also some limitation or some demerits. Like genetic diversity may have already been dramatically decreased. एक तो इससे जो genetic diversity है वो मतलब already decrease है. Condition that threatened organism in the area may still be present, such as decrease in interspecific competition. That is important point कि हमारा जो मेन पर्पस था उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने का, वो यही था कि उनको जो डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं उन थ्रेट से महफूज किया जाए, उन थ्रेट से उनको बचाया जाए. तो इसके लिए हमने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की. लेकिन अगर हम उनको उनके अपने एरिया में, उनके अपने हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स दैट वहाँ पर वो थ्रेट्स अभी भी मौजूद हैं. जो थ्रेट्स उनको पहले ही थ्रेट कर रहे थे, उनकी लाइफ को, उनका सर्वाइवल जो मुश्किल कर रहे थे, वो थ्रेट्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं.
तो इस कंडीशन में इस तरह के कंजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा अनटिल और अनलेस हम उन तमाम थ्रेट्स को ख़त्म नहीं करते जो थ्रेट्स उन ऑर्गेनिज्म की, उन लिविंग एनिमल्स की, प्लांट्स की, व्हाटएवर, उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट है. सो वी नीड टू एलिमिनेट दोज थ्रेट. Poachers and ecotourists may see the thriving area as an opportunity and may cause damage. और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो इन कैटेगरीज़ में आते हैं जहाँ पर हम उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर इको टूरिस्ट पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो आप डिफरेंट स्टडी पर्पस के लिए या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तफरी मकासद के लिए वहाँ पर आते हैं. लेकिन उनके आने के साथ वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट के चांसेस हैं, उसको डैमेज होने के चांसेस हैं और वहाँ के जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी थ्रेट पहुँचता है. तो इस तरह से इस तरह की कंजर्वेशन के मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं. Now we will discuss ex situ conservation, and we have discussed this type of conservation in last module, that in this type of conservation we conserve genetic resources outside their natural habitat. In this type of conservation we conserve different species, or we conserve genetic resources outside their natural habitat. It is opposite to in situ conservation, in which we conserve genetic resources inside their natural habitat. Merits: it can be used to protect individual animal in a controlled environment. This means that issues such as predation and hunting can be monitored and managed more easily. Definitely in this type of conservation we are protecting or we are conserving animals outside their natural habitat in a very controlled environment. और इस तरह के इन्वायरमेंट में हंटिंग अलाउ नहीं होती, अगर होती है तो मॉनिटर की जा रही होती है. इस तरह से प्रीडेशन के चांसेस कम होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं. तो वो जो डिफरेंट थ्रेट्स जो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में मौजूद थे, उन थ्रेट से हम उनको बचा लेते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से उन तमाम ऑर्गेनिज्म को हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा होता है, जहाँ पर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं. तो इस तरह की कंजर्वेशन से इन तमाम जेनेटिक रिसोर्सेज के, इन तमाम एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. इट कैन बी यूज्ड टू रीइंट्रोड्यूस स्पीशीज़ दैट हैव लेफ्ट एन एरिया. बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अपना एरिया छोड़ जाती हैं और डिफरेंट रीज़न से अपना हैबिटेट चेंज कर जाती हैं. वो रीज़न वहाँ पर मौजूद जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज होना हो सकता है इसी तरह से, या फिर वहाँ पर थ्रेट्स जो हैं डिफरेंट प्रेडेशन थ्रेट्स, डिजीज़ थ्रेट्स. तो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो अपना एरिया जो है वो छोड़ जाती हैं. तो हम इन स्पीशीज़ को अगेन उन एरियाज़ में रीइंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. और इसी तरह से वो स्पीशीज़ भी जो इंडेंजर्ड है, जिनको एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं, हम उनको भी अगेन उनके एरिया में रीइंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस demerits of ex situ conservation. First demerit is usually only a small number of individual can be cared for. क्योंकि ये जो ये सेंटर्स जहाँ पर इन स्पीशीज़ को कंज़र्व किया जा रहा है, ये सेंटर ज़्यादा एरिया पर नहीं होते. तो इस तरह से हम ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं उनको कंज़र्व नहीं कर सकते. ये एक लिमिटेशन है कि हमारे पास एक जो एरिया है, प्रोटेक्टिंग एरिया, वो एक छोटा सा एरिया है, वो ज़्यादा स्पीशीज़ को बेयर नहीं कर सकता. तो हम ज़्यादा स्पीशीज़ को कंज़र्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. और अगर कंजर्व कर रहे हैं तो हर स्पीशीज़ को इक्वली हम केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते. It can be difficult and expensive to create and sustain the right environment. डेफिनेटली हम वो इन्वायरमेंट उन स्पीशीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकते जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसमें वो अडॉप्टेड थे, जिसमें वो अपनी लाइफ स्पेंड करते आ रहे हैं. हम उनको यहाँ पर एक बेटर इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा नहीं हो सकता. एंड सेकेंडली, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. एक ऐसा इन्वायरमेंट उन स्पीशीज़ को देना जहाँ पर कोई थ्रेट ना हो, तो इस तरह का इन्वायरमेंट हम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है.
और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है कि उसको मेंटेन भी किया जाए। द एनिमल्स दैट आर हैबिचुएटेड यूज टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट मे बी लेस लाइकली टू एग्जिबिट natural behaviors and may be more likely to catch a disease from humans। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस के यूज टू होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स के यूज टू होते हैं। तो इस तरह के एनिमल अपना नेचुरल बिहेवियर शो नहीं कर सकते, वो ह्यूमंस कम्युनिटी में रहते हैं, तो वो इन इंसानों के ह्यूमंस के यूज टू हो चुके होते हैं, तो उनका एक जो अपना बिहेवियर है हम चेक नहीं कर सकते। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप के जो जूनोटिक डिजीज़ हैं, zoonotic diseases are those diseases which can transmit from animals to animals or from humans to animals or from animals to humans। तो ये जो diseases हैं इनके भी ह्यूमन से इन एनिमल्स में स्प्रेड होने के चांसेस मौजूद होते हैं। This type of conservation is usually less successful as many species can't breed successfully in captivity or don't adopt their new environment when moved to a new location। इस तरह की जो कंजर्वेशन टेक्निक है उसका जो एक मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि बहुत सारे स्पीशीज़ एक क्लोज कैप्टिविटी में ब्रीड नहीं कर सकते, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अडॉप्टेड होते हैं, उस नेचुरल इन्वायरमेंट में वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली ब्रीड कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन स्पीशीज़ को एक क्लोज कैप्टिविटी में रखें तो वहाँ पर उनका सर्वाइवल चांसेस में भी इंक्रीज़ हो जाएं कि उनको हमने थ्रेट्स उनके कम कर दिए हैं, थ्रेट से महफूज कर लिया है, लेकिन वो वहाँ पर सक्सेसफुली ब्रीड नहीं कर सकते, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं करती। सेकंड, समटाइम ये भी होता है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे जेनेटिक रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि एक न्यू इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं कर सकते। जब भी उन्हें किसी न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो उस इन्वायरमेंट में ख़ुद को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी हम इन ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर ले जाकर कंजर्व नहीं कर सकते। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ ex situ conservation। So dear students, in this module you have learned about in situ conservation and ex situ conservation, different merits of in situ and ex situ conservation, different demerits or limitation of in situ and ex situ conservation। लेकिन ये दोनों टेक्निक अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हम दोनों टेक्निक्स में जो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर रहे हैं, और इस कंजर्वेशन से जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन जेनेटिक रिसोर्सेज से उतना ही फ़ायदा ले सकती हैं जितना कि हम ले रहे हैं। अगर हम इन जेनेटिक रिसोर्सेज को मुसलसल यूज़ करते रहें, इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मुसलसल यूज़ करते रहें, उनको कंजर्व ना करें, तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, तो आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो इनको यूज़ नहीं कर सकेंगी, तो उनके सर्वाइवल को एक थ्रेट होगा। इन नेक्स्ट लेसन we will discuss about some strategies for plant conservation, like in next module we will discuss about the global strategy for plant conservation. Thank you.